Hello students, how are you all? I hope you all are okay, you all will be fit and fine. So once again I welcome you on my YouTube channel E-Learning with Ankit, the place where we learn the subject chemistry. First of all, it's my apologies to you. ये part third video काफी late से आया. Due to some certain reasons I was not free to shoot the part third of this chapter solutions as you can see here. So today we are going to start part third of solution chapter. In this particular part इसमें हम discuss करेंगे, we are going to solve the numerical problems. In part second we have gone through the number of expressions through which we can calculate the concentrations of solutions. Let me make you remind once again. मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम के बारे में डिस्कस किया था, एंड लॉट मोर वी हैव डिस्कस इन द पार्ट सेकंड वीडियो. इफ यू हैवंट वॉच्ड द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, आई एम प्रोवाइडिंग the link of the part second on this I button. आप यहाँ क्लिक कीजिए and you will go through the part second. Then after आप इसको देखिए, this is how you can solve the numericals easily. Otherwise you will have to face some problems and difficulty while solving the numerical problem. One more important thing, एक जरूरी important thing आप बता देता हूँ कि as I always say, whenever you are watching my videos, have a notebook and pen with yourself. ठीक है, अपने साथ रखें. Before starting the numerical problem, जैसे मैं यहाँ numerical problem कराऊंगा, before that try to write the half number one page hand written formula of yours by yourself. ठीक है, अपने से एक पेज में जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखा है पार्ट सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन का, और अगर आपको पहले से भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. Whatever you know the formula of concentrations, molality, normality, जो भी पता है पहले से उनको लिख लीजिए, because while solving the problem you don't have to go through your books और बार बार आपको चीजें रिमाइंड करके नहीं देखनी होगी. and ultimately one more benefit is that formula आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे. ठीक है, so the same manner as I always do, one by one मैं क्वेश्चन लिखूंगा and then after you have to solve it. But how you have to solve it? Just pause the video. जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज करना है. You have to try by yourself. Once, if you are not able, if you are not capable to solve the questions, if you are facing difficulty, solve the question, just play the video and just see how I am going to solve those questions. Okay, so one by one, let's solve the questions. So students, let's discuss first problem. देखते हैं first numerical problem discuss करते हैं. किस पे based है ये? The density of 85% sulfuric acid is 1.7 gram per centimeter cube. What is the volume of solution which contains 17 gram of sulfuric acid? ठीक है, means density is given here. One more thing important, जैसा मैंने कहा सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए and try to solve this by yourself only. If you are facing the difficulty while solving the problem, कई स्टेप में प्रॉब्लम होती है, then play the video and try to see how I am going to solve this question. Okay, तो पहले क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, what are the given data, हम वो लिख लेते हैं and based upon the given data and the conditions that are being asked in the question, उस पे डिसाइड करता है which expression, which formula you have to use. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, the density of means we have to utilize the formula density is equals to mass upon volume. We have to utilize the formula density is equals to mass upon volume. Somehow we have to utilize this formula. हमें इसको यूटिलाइज करना है, इसी के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, बट डेंसिटी इज इक्वल, एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये होता है हमारा डेंसिटी, हमें दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं डेंसिटी यहाँ पे 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी इज गिवन हियर, लेट मी राइट, देन थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू इट. Density is equals to mass upon volume. Density is given here, and what we have to find out the volume. What is the volume? We have to find out the volume, but mass is not given. ठीक है, बट मास गिवन नहीं है, लेकिन हाँ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे, वही देखते हैं. अगर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन. तो यहाँ देखा 85% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट मींस टू से 85% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इट डज मीन 85 ग्राम of sulfuric acid. I am writing in form symbol. 85 gram of H2SO4 is present in solution is equals to 100 ग्राम. 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारा जो H2SO4 प्रेजेंट है वो 85 ग्राम है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कंटेन 17 ग्राम ऑफ, ऐसा वॉल्यूम बताए इस सॉल्यूशन का जिसमें H2SO4 17 ग्राम हो. सो फॉर 17 ग्राम, सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूनिटरी मेथड. 17 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in
17 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in solution is equals to 100 upon 85, ठीक है, 100 upon 85 into 17. So if you will cancel it, 17 5 is 85 on 100 divided by 5, 20 is equals to 20 gram. Means 20 ग्राम जो 17 ग्राम H2SO4 है वो 20 ग्राम के सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा. Now what we have to find out, हमें फाइंड क्या करना था, हमें वॉल्यूम फाइंड करना था. So we can write here once again, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, we know that density is equals to mass upon volume. It does mean volume is equals to mass upon density. Volume इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लिया, ट्रांसफर किया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें यहाँ मिला 20 ग्राम, ठीक है. कैसे मिला है, यहाँ से 17 ग्राम. मींस 17 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट हमारा 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी इज गिवन हियर 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट they don't will to write the unit लिखने से पीछे मत हटिए, because somehow at the time of your examination जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस फेस करेंगे वहां पे कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा सबका सेम देगा, यूनिट्स डिफर कर जाएंगे. तो अगर आपकी प्रैक्टिस बिना यूनिट लिखने की क्वेश्चन सॉल्व करने की, सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम, ठीक है. हो सकता है आप कैलकुलेट तो सही कर पाए, बट यूनिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट का नॉलेज नहीं होने के कारण कि कैसे क्या, हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बट हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम हो तो वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी होगी. इस वजह से don't let any loophole, don't let any stone unturned in your progress of solving the numerical, ठीक है. तो देखते हैं कितना होगा. अच्छा, one more thing, just to save the time सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, बट बिलीव मी जब मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया तो कभी भी मैंने कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं किया है. सो यू डोंट हैव टू यूज. अगर मैं नहीं करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है. सो ऑल वंस अगेन आई एम सेइंग, आप मत यूज कीजिएगा कैलकुलेटर वगैरह का, पहले खुद से ट्राई कीजिए. बार-बार कैलकुलेशन करने पे गलत आ रहा है तो भले ही कर दीजिए, ठीक है. 20 divided by 1.17, sorry 1.7, so it's 11.76. so value comes out to be 11.76 gram cancel centimeter cube. so this will be the volume of solution in which 17 gram of sulfuric acid is present. तो ये हमारा आंसर लास्ट आता है. So this is how we can calculate this problem. तो इस तरीके से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई किया हमने, और ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो भी गिवन चीज है वहां से हम सोचने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. जैसे जैसे और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, नियर अबाउट 20 प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस, ठीक है. तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2. दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग. 1 लीटर ऑफ सी वाटर weighs 1050 gram and contains 6 into 10 power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate concentration of dissolved oxygen in ppm, ठीक है. मास ऑफ वाटर दिया है हमें यहाँ पे 1050 ग्राम, इतना उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस है. देख सकते हैं 6 into 10 to the power minus 3. अगर इस टाइप का इतना ज्यादा, लगभग 1 लीटर से ज्यादा 1050 ग्राम है हमारे पास, उससे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इतना कम है, 6 into 10 to the power minus 3 है. सो विदाउट सीइंग दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, वेरी इजीली वी कैन से, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन जो है वो पीपीएम में ही कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज मोलैरिटी वगैरह में वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ठीक है. तो हालांकि यहाँ पहले दे रखा है कि हमें पीपीएम में कैलकुलेट करना है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है. सो इफ वी नो द फार्मूला ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, सही होता है हमारे पास. तो मास ऑफ हमें दिया है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखा है, सिर्फ हमें फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं. अगर ये बोर्ड स्टूडेंट्स, कोई एकेडमी के स्टूडेंट्स या बोर्ड स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर, इसका सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आप पूरा स्टेप वाइज लिखिए. स्टेप वाइज मींस यू हैव टू राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, गिवन क्या चीज है, मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा लिख के तब करेंगे. मैं नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज वीडियो विल बी टू मच लेंथी, ज्यादा लेंथी हो जाएगा और दिक्कत, ठीक है. तो पार्ट्स पर मिलियन फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम अपॉन, वो ये हमारे पास सॉल्यूशन का कितना है मास 1050 ग्राम into 10 to the power 6, ठीक है. इस तरीके से हमारे पास है. सॉल्व करते हैं इसको.
कितना मिल जाएगा, 10 टू पावर 6 है, 10 टू पावर 3 है, यहाँ करेंगे 6 into 10 टू पावर 3, पॉजिटिव 10 टू पावर 3 हो जाएगा, एंड इन डिनोमिनेटर वी विल फाइंड 1050। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। वंस अगेन मैं से कह रहा हूँ, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर जस्ट टू सेव द टाइम, प्लीज डोंट डू दिस, आप मत कीजिएगा इस चीज को। सो 6000 divided by 1050, 5.71, the answer comes out to be 5.71 ppm. So this is the calculated concentration of this dissolved oxygen. ठीक है, one question is here, ये है क्या, dissolved oxygen क्या है? If you do know, अगर आपको पता है dissolved oxygen के बारे में, कमेंट कीजिए, बताइए क्या है dissolved oxygen। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ppm देखा, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन इसका इतना 5.71 ppm आएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 95 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखा है, मींस अगेन हमें फार्मूला यूज करना होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ NaCl? हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ NaCl। फार्मूला क्या होता है मास परसेंट निकालने का? मास ऑफ NaCl लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो हमें मास ऑफ NaCl दे रखा है यहाँ पे 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना होगा, और उसके लिए हम इसका यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेशन हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, सो वी विल यूज हियर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हम इसका यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डेंसिटी 1.25 ग्राम, 1.25 इनटू वॉल्यूम 95 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात और, सेंटीमीटर क्यूब में ये भी है, सेंटीमीटर क्यूब में, अदरवाइज अगर यहाँ वैल्यू सेम नहीं रहती, सो वी वुड हैव टू चेंज इट इनटू द सेम यूनिट, 95 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलेगा हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन। 1.25 into 95, 118.75, 118.75 ग्राम। This will be the mass of solution. So mass percent हमें निकालना है, डायरेक्ट लिखेंगे mass percent of NaCl, mass percent of NaCl, mass of NaCl कितना है हमारे पास, mass of NaCl 20 ग्राम अपॉन ये कितना है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन 118.75 into 100। ठीक है, सो व्हाट यू विल फाइंड आउट, सो यहाँ पे 2000 हो जाएगा हमारे पास, 2000 डिवाइडेड बाय 118.75। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए कितना मिलेगा। 2000 divided by 118.75, 16.84। This is the solution, this is the mass percent of NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास परसेंट के सॉल्यूशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं सम मोर प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, उसके बाद फिफ्थ भी डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिख लिया। 6 into 10 to power 3 gram of oxygen is dissolved in per kg of the sea water, means 1000 gram। मैं क्यों 1000 कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी ग्राम में है। Calculate the ppm of oxygen in sea water if the density of sea water, sorry if लिखना भूल यहाँ पे, if the density of sea water is 1.03 gram per centimeter cube। Pause the video and try to solve the question by yourself। 2 मिनट समय लीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं, देन आफ्टर वॉच द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा पीपीएम को कैलकुलेट करने का सेम वही मास ऑफ हमें चाहिए, सॉल्यूट जो भी डिसॉल्व हो रहा है उसमें, और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास नहीं है लेकिन डेंसिटी का फार्मूला है। अगेन वही चीज फिर से हम अप्लाई करेंगे जो पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने किया है। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1.03 इनटू पर केजी ऑफ द सी वाटर, पर केजी ऑफ द सी वाटर मींस 1000 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का बच जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे है हमारे पास, और ग्राम यहाँ पे हमारे पास 1.03। सो हियर वी विल गेट 1030 ग्राम, ये मिल जाएगा हमारे पास। मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास आ गया टोटल। ठीक है, सो पीपीएम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन।
ऑक्सीजन का ppm। मास कितना है इसका 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 1030 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना मिलेगा हमें वैल्यू। देयरफॉर ppm इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके देखते हैं 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ही हमारा 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 6000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6000 बिकॉज 10 टू पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 1030 10,000, so 1030 6000 divided by 1030 5.825, so we are obtaining the value 5.825 is the correct answer of this numerical problem। ठीक है, तो इसका जो आ रहा है ppm वो 5.825 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 5। अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मास परसेंट कैलकुलेट करना है, मींस जिस भी कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के लिए, मास परसेंट। सो पहले हम हर एक कंपोनेंट का निकालना है, तो पहले हम किसका निकालते हैं यहाँ पे 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन वाटर। ठीक है, तो पहले हम केन शुगर का निकालते हैं। सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले हम केन शुगर का निकालते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम वाटर का निकालेंगे। ठीक है, सो मास परसेंट ऑफ केन शुगर, मास परसेंट ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का मास हमारे पास 15 है, एंड आफ्टर दैट द मास ऑफ सॉल्यूशन 15 प्लस 60 75 ग्राम, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 15 ग्राम हियर, 75 ग्राम हियर इनटू 100। सो हाउ मच वी विल फाइंड आउट, 15 5 is 75, so 100 divided by 2, sorry 100 divided by 5, okay, so we will get 20%। मींस 20% हमारे पास केन शुगर का जो मास परसेंट है वो 20% आया। अनदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट का पूछा गया यहाँ पे, सो इट्स वेरी इजी, दूसरे कंपोनेंट का करना आसान है। जब एक 20% है, दूसरा जो कंपोनेंट है उसका 80% ही आएगा आंसर। देख लेते हैं करके सॉल्व, अदरवाइज इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, हालांकि कोई ट्रिक भी कोई कंसीडर नहीं है, बट ट्रिक है कि एक 20 आ रहा है तो दूसरा 80 भी आएगा। आगे में लिखते हैं मास परसेंट ऑफ वाटर H2O, 60 ग्राम ऑफ वाटर है, 60 upon 75 into 100, how much you will get here? 5 is 60, 5 1 is 5, 5 is 25. Okay, so to that 5 3 is 15, 5 is 20, 12 23 3 4 is 12, 4 2 is 80, that is 80%। ठीक है, सो वही मैंने कहा था कि जब एक 20% आ रहा है तो दूसरा सबट्रैक्ट करके 100 से सबट्रैक्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था, मास परसेंट कैसे कैलकुलेट किया हमने, और यहाँ पे पीपीएम के प्रॉब्लम। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 and 7 व्हिच आर बेस्ड अपॉन द मोल फ्रैक्शन। इस दोनों ही प्रॉब्लम्स मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड बेस्ड हैं। कुछ बच्चों के लिए मोल फ्रैक्शन उनको थोड़ा इजी लगता है मोल फ्रैक्शन, तो देखते हैं। Calculate the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 92% ethanol by mass. What means to say 92% ethanol by mass? जब भी कहीं भी ऐसा लिखा रहे, दिस टाइम कोविड क्राइसिस चल रहा है, हम लोग सैनिटाइजर्स यूज करते हैं ना, तो उसके पीछे लिखा रहता है 70% वेट बाय वेट, या V by V, या W by V, या P by W। उसका क्या मतलब है? उसका भी वही मतलब है कि 70 ग्राम हम लोग का प्रेजेंट है वो 100 ml में, या 70 ml प्रेजेंट 100 ml में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि 92% इथेनॉल बाय मास प्रेजेंट, मींस मास ऑफ इथेनॉल। देखते हैं यहाँ पे हम लोग के पास जो मास ऑफ इथेनॉल है वो कितना है, मास ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मास ऑफ इथेनॉल हम लोग के पास यहाँ पे 92 ग्राम है। ओके, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि अगर 92 ग्राम हम लोग के पास इथेनॉल है तो मास ऑफ H2O यहाँ पे कितना होगा, मास ऑफ H2O
इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, टोटल 100 ग्राम होना चाहिए, तो ये 8 ग्राम होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना है, तो उसके लिए हमें दोनों का ही मोल्स चाहिए। सो फॉर दैट मोल्स ऑफ एथेनॉल निकालते हैं, उसके लिए मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट 92 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका देखते हैं, तो कार्बन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट इसका कार्बन के 12, तो 12 टू 24, दो कार्बन हम लोग के पास, 5 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन 6 और 1 यहाँ पे, तो 5 + 4 9, 9 6 15, 15 8 16, 6 कैरी ऑन 1 2 2 3 8 4 46। ठीक है, तो 46 हमारे पास यहाँ पे इसका आ रहा है। सो मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसका हमें मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, किस फॉर्मूले का यूज करना होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमारे पास इसका 92 है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ C2H5OH का, C2H5 मींस एथेनॉल, C2H5OH इज इक्वल्स टू गिवन वेट हमारे पास यहाँ पे 92 ग्राम है, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 46 होगा, सो दैट इज 46 ग्राम पर मोल। अगर आपको याद नहीं है तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 कार्बन है हम लोग के पास, 24 हो जाएगा यहां से, और हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, वैसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 96 डिवाइडेड बाय 42 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में चला जाएगा हमारे पास 2 मोल। ठीक है, तो इसका 2 मोल हमारे पास आया। वाटर का कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो वाटर के लिए हमारे पास मिल जाएगा 8/18, 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम, यहाँ पे ग्राम पर मोल। So what you will find out here, डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाय 18, 8 डिवाइडेड बाय 18 0.44, the value we are obtaining 0.44। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, हमें यहाँ पे एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, chi is equals to, ठीक है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल 2 अपॉन number of moles of ethanol again plus number of moles of water, that is 0.44। इसको सॉल्व कीजिए, you will get your answer। ठीक है, number of moles of ethanol हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तरीका क्या है, यही एक मेथड है जिसके थ्रू मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालिए यहाँ पे, so simply one thing you have to do, if you do remember a formula, अगर याद हो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कहीं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, chi1 plus chi2 is equals to 1, means the mole fraction of solute plus solvent is equals to 1। तो हमने solute का निकाल लिया, अगर solvent का पूछता है तो 1 से subtract कर देंगे। This is how we can calculate, water का भी हम calculate कर सकते हैं। ठीक है, तो I hope ये question clear है। देखते हैं question number 7। A solution has been prepared by dissolving 60 gram of methyl alcohol in 120 gram of water। 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, 120 ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है। What are the mole fraction of methyl alcohol and water? ठीक है, अगेन मिथाइल अल्कोहल और वाटर का दोनों का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो मैं सिर्फ मिथाइल अल्कोहल का करूंगा, एंड फॉर वाटर इट विल बी योर होमवर्क, एकदम एज इट इज सेम तरीके से करना होगा, बस न्यूमेरिकल डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा CH3OH का। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, रिमेंबर हियर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, यहाँ मिथाइल अल्कोहल है। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यही कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें निकालना होगा मिथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। सो व्हाट यू विल फाइंड आउट हियर, 60 अपॉन, अब यहाँ पे हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, 12 4 16 ऑक्सीजन का 16 32। सो 60 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सो हाउ मच यू विल गेट, कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करके देखते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 32, 60
divided by 32, 1.875. The value we are obtaining here is 1.875. Let me see once again. 1.875 ये वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल का। अब इसके साथ हमें वाटर का भी कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O, ठीक है। ये कितना है 120 ग्राम गिवन वेट है हमारे पास, और यहाँ पे होता है वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे भी ग्राम। सो हाउ मच यू विल गेट 120 डिवाइडेड बाय 18, 120 डिवाइडेड बाय 18, 6.66 वैल्यू वी आर ऑब्टेनिंग, 6.66 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। हमें मिथाइल अल्कोहल का कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मिथाइल अल्कोहल का, काई CH3OH, ठीक है। इस तरीके से लिख के करेंगे, या हम 1 2 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे पर डिपेंड करता है कैसे करना चाहे। काई CH3OH कितना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.875 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 1.875 प्लस 6.66, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा था मिथाइल अल्कोहल और वाटर का, बात बच जाती है सिर्फ वाटर के, दैट इज काई H2O। ये कितना होगा, तो सेम इसके लिए ऐसा सेम, ये होमवर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ अब यहाँ पे वैल्यू 6.66 हो जाएगा, नीचे तो सेम रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का भी मोल फ्रैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। आई होप दीस टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 8 9 10 देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। अ शुगर सिरप ऑफ वेट 183.42 ग्राम कंटेन्स 3.42 ग्राम शुगर। इतना शुगर सिरप का वेट है, उसमें इतना शुगर है हमारे पास, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। शुगर का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हमें मोल्स ऑफ शुगर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये निकालते हैं पहले मोल ऑफ शुगर, मोल ऑफ शुगर देखते हैं ये कितना होगा। मोल्स ऑफ शुगर गिवन वेट कितना है 3.42, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट, शुगर का फॉर्मूला अगर जिसे ना पता हो वो बता देता हूं। शुगर का फॉर्मूला हमारे पास C12H22O11, तो जो शुगर का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट फॉर्मूला विल बी C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला हमारे पास होगा C12H22O11। लेट मी राइट हियर C12H22O11। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल मिलेगा। सो 342 ग्राम पर मोल, और ये हमारे पास ग्राम है। सो हाउ मच यू विल गेट हियर, हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 0.1 मोल, ठीक है। जो मोल्स ऑफ शुगर मिला हमें 0.1 मोल। अब मोल फ्रैक्शन चूंकि हमें निकालना है तो हमें मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए, ठीक है, कि वाटर कितना है। सो उसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ, पहले वाटर चाहिए, तो मास ऑफ वाटर निकालेंगे यहाँ से, मास ऑफ H2O। वो कैसे निकलेगा, जितना शुगर सिरप का वेट है उसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें पता चल जाएगा कितना वाटर है। मींस 183.42 माइनस 3.42, हाउ मच यू विल गेट, 183 में से 3.42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल फाइंड 180 ग्राम, ठीक है। इतना हो गया। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू, मैं सिंबल्स में लिख दे रहा हूँ इस बार, गिवन वेट 180 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी 18 होता है, सो दैट इज 10। तो आंसर कितना है हमारे पास 10 आया, ठीक है। दोनों का हमारे पास मोल आ गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का, तो वेरी इजीली वी कैन राइट हियर NC2, सॉरी नॉट n, जस्ट काई लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन को हम काई से लिखते हैं। सो काई C12H22O11 इज इक्वल्स टू कितना देगा मोल फ्रैक्शन, हम लोग सॉरी मोल्स कितना है शुगर का 0.1, और अगेन 0.1 प्लस यहाँ पे वैल्यूज कितनी हमारे पास 10 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इस शुगर का हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। दिस इज योर वर्क, इतना आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे, एक क्वेश्चन अभी मैं कर रहा था, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि हम लोग बात कर रहे हैं शुगर की। वी नो दैट कि जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, जो मींस लाइक डिसॉल्व, लाइक हमेशा पढ़े हैं हम लोग, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो शुगर कैसे फिर वाटर में डिसॉल्व हो रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि शुगर हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इफ यू डू नो द रीजन कमेंट इट बिलो, ठीक है। अदरवाइज व्हाइल सॉल्विंग द व्हाइल गिविंग यू लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, डिसॉल्व क्यों हो जाता है शुगर, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से यहाँ पे मोलर लिखा है, ठीक है, ये कैपिटल एम नहीं लिखा है हमारे पास। अगर कैपिटल एम लिखा होता है इसका मतलब मोलर हो जाता, मतलब मोलैरिटी की बात होती। यहाँ पे मोलर लिखा है, मींस देयर इज we are talking about, question is somehow giving us hint that we have to use the formula of molality, concept of molality हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट है यहाँ निकालना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2.5 मोलर दिया है, इसका मतलब हमें मोलैरिटी का डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो 2.5 मोलर दिया है, इसका मतलब जो सोल्यूट का मोल है वो भी 2.5 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे moles of solute, moles of solute is equals to 2.5, ठीक है। moles of solute हमारे पास 2.5 है। अब हमें moles of solvent चाहिए, ठीक है। क्या निकालना है, हाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो moles of solvent चाहिए। अभी मैंने क्या कहा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। सो यहाँ मोल्स निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का, moles of solvent, moles of solvent। so number of moles of solvent हमें निकालना है, इसका मतलब 1000 ग्राम given weight अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना, यानी वाटर है हम लोग के पास, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। हाउ मच यू विल गेट हियर, कितना मिल जाएगा देख लेते हैं, डिवाइड करके 1000 डिवाइडेड बाय 18, आई थिंक समहाउ इट मस्ट बी 55.5, 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.5, सब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 55.5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे काई मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मैं काई एस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय अगेन 2.5 प्लस 55.5, ठीक है। 55.5 है, हमेशा ऑलवेज डू रिमेंबर 4 डिजिट तक वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ नहीं दिया था इसलिए मैंने 2.5 लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा कि कितना इसमें इस एक्वस सोल्यूशन में। अच्छा, एक बात और कोई पूछेगा कि सर आप वाटर का ही क्यों ले लिए, बिकॉज़ इट्स रिटन हियर एक्वस, एक्वस वर्ड इज रिटन हियर, इस वजह से मैंने वाटर का यहाँ पे कंसिडरेशन किया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, सॉरी नॉट लास्ट क्वेश्चन, इस टर्म के बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड पे जितने क्वेश्चन लिखे उसका लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl alcohol and water in a solution in which 46 ग्राम of ethyl alcohol and 180 ग्राम of water are mixed together, ठीक है। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं उस केस में क्या है, अगेन इजी क्वेश्चन है। सो वंस अगेन मैं एक का करूंगा, वाटर का आप खुद भी कर सकते हैं अपने से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग इथाइल अल्कोहल का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल चाहिए। मिथाइल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम है, और पीछे भी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया तो उसका मोलर मास भी 46 था, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी C2H5, व्हाट इज मींस 62850H, 46 गिवन वेट है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी कितना होगा 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने किया था, इज इक्वल्स टू 1, ये 1 मोल हमारे पास है। वाटर का अगर देखें हम लोग तो वाटर 180 ग्राम है, साफ देखने से लग रहा है, तुरंत भी फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है 180 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 80 ग्राम पर मोल। सो हाउ मच यू विल गेट हियर 10, ठीक है, 10 मोल होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का, यानी काई C2H5OH is equals to 0, sorry not 0.1, 1 divided by 1 plus 10, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत हमारा वैल्यू आ जाएगा। और
वाटर का निकालना है, जितनी वैल्यू है उसको हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला। वंस अगेन आई एम राइटिंग, इस फार्मूले को मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, chi1 प्लस chi2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जो भी आया इसको मैं chi1 अगर सपोज कर रहा हूं तो chi2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 1 से सब्ट्रैक्ट करके वेरी इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर वैसे नहीं करना है तो फिर से यही फार्मूला 10 को ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ फिर वो 10, तब इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so I hope these sort of 3 questions are clear to you. Take the screenshot of this. After that we will discuss some more problems. So students, आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी पे। कहा जाता है कि नॉर्मल रहिए, बी नॉर्मल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ नॉर्मलिटी पे प्रॉब्लम्स। ठीक है, नॉर्मलिटी पे प्रॉब्लम्स डिस्कस हार्ड तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट होते हैं नॉर्मलिटी के प्रॉब्लम्स। क्यों? बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट 2 to 3 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, बट एनीवेज टफ नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करें, देख खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट मच टफ लाइक वी थिंक। ओके, a solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of H2SO4 in 100 ml of solution. Calculate the normality of solution। ठीक है, 0.49 ग्राम ऑफ हम लोग के पास H2SO4 उसको डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो बताइए सोल्यूशन कितना नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले नॉर्मलिटी n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml यानी 0.1 लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये सब सारी चीजें, ऑल द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी, ऑल the things I have cleared in part second. So if you haven't watched the part second, once again I am saying you, please watch the part second. ठीक है, उसके बाद देखिए तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो मोलर मास हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मोलर मास देखिए यहाँ से H2SO4 का सॉरी नंबर ऑफ गिवन मास, जो गिवन मास होगा हमारा वो, और इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट हम लोग का क्या होगा? मोलर मास ऑफ द एसिड या बेस, जो भी है। यहाँ पे एसिड है हम लोग का, तो इसका 98 होता है हम लोग के, इसका पता है हम लोग को 98 ग्राम पर मोलर मास। ठीक है, अपॉन बेसिसिटी, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है तो 2 होगा, तो यानी यहाँ पे हमें मिल गया ये 49। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इसका हम लोग को मिल गया इसका 49। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। गिवन वेट कितना है? 0.49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, सो हियर यू विल फाइंड आउट, नॉट फाइंड आउट, बार मैं फाइंड आउट कह रहा हूँ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0.1। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास वैल्यू यहाँ पे टोटल? 49 डिवाइडेड बाय 49, 0.1 न्यूमरेटर में, 0.1 डिनोमिनेटर में, सो यू विल गेट नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी की वैल्यू हमें मिल जा रही है वो 0.1, मींस ये जो सॉल्यूशन हम लोग का वो 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, कहीं कहीं सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड आउट द डेसी नॉर्मल, कहीं कहीं डेसी नॉर्मल भी कहा जाता है, तो गलत नहीं है, वही चीज है। डेसी नॉर्मल अगर कहा जाए इट मींस वो हम लोग का कितना है? 0.1। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Calculate the number of molecules of oxalic acid in 100 ml of 0.2 normal oxalic acid। ठीक है, अगर कोई बीकर है हमारे पास, उसमें 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड है और 100 ml का सोल्यूशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सैलिक एसिड के, ये पता लगाना है। ठीक है, इजी है, जैसा कि नॉर्मलिटी है तो कॉन्सेप्ट नॉर्मलिटी का यूज होगा। देखते हैं सबसे पहले, पहले ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स डू मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, COOH.2H2O, ये लिखना भूल जाते हैं, .2H2O। ठीक है, ऑर्गेनिक में ज्यादातर ये चीजें नहीं ओमिट कर दी जाती हैं, बट हमें ये लिखना चाहिए, नहीं तो उससे गलत हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ही हम गलत फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब पहले हमें मास फाइंड आउट करना होगा, उस मास से हम मोल की तरफ जाएंगे तब हमें वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल पाए। मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट की तरफ गए थे। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करते हैं। अच्छा, लिख के मैं बताता हूँ कैसे करेंगे।
नॉर्मलिटी n इज इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था हम लोग के पास, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर ये हम निकाल ले, इक्विवेलेंट वेट तो हम निकाल लेंगे और नॉर्मलिटी हमें दे रखा है तो गिवन वेट मिल जाएगा, फिर वहां से हम अवोगाड्रोस नंबर्स के थ्रू इसको निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास किया है 0.1, तो देखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं सबसे पहले, इसका कितना होगा हम लोग का इक्विवेलेंट वेट। अगर इसका देखें हम लोग 126 आता है इसका, अगर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सिलिक एसिड का तो 126 और 2 रिप्लेसेबल OH- है जो इसकी एसिडिटी है इतनी, तो इक्विवेलेंट वेट शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे EQWT करके, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ग्राम पर यूनिट, इसका इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया हम लोग के पास। नॉर्मलिटी कितना दिया है हमारे पास, 0.2 नॉर्मल है ये, इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट हम मान लेते हैं कि x है हमारे पास, नहीं पता हमें x ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इसका आया हमारे पास 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1 लीटर। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हमें समय मिल जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू x ग्राम इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का 0.02 अपॉन, ठीक है, नॉट 0.02 अपॉन नहीं होगा यहाँ पे 0.02, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और 63 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 63 हमारा मल्टीप्लाई, सो हाउ मच यू विल गेट 63 into 2 126, देन यहां लिखता हूं मैं x इज इक्वल्स टू 126 2 डिजिट पर डेसिमल 1.26 ग्राम। ठीक है, ये इतना हमारे पास आ गया, द नंबर ऑफ सॉरी मास इतना आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि अगर 126 ग्राम है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, मतलब 1 मोल अगर ऑक्सैलिक एसिड है, क्यों 1 मोल में केवल, क्योंकि 1 मोल इसके बराबर, तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है हमारे पास तो उसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट वाइज नहीं लिख रहा हूं, बट आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है। 6.022 into 10 to power 23 हमारे पास यहाँ कितना है, नंबर ऑफ मास कितना है 1.26, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1.26 is equals to 6.022 into 10 to power 23 अपॉन डिवाइड करेंगे 126 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.26 से, कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से कितना हो जाएगा 6.022 into 1.26, नीचे मतलब यहाँ पे 0.01 मिलेगा, तो इट डज मीन 6.022 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल, जैसे डिवाइड करेंगे 0.01 वैल्यू मिलेगी, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें होंगे 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में। ओके, so I hope these two questions are clear to you. Take the screenshot of this. After that we will discuss some more problems based upon normality. So आइए डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रिमेंबर, मोलैलिटी कैलकुलेट करना हमें, मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ठीक है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो तो 1000 ग्राम हम लेंगे। ठीक है, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.85 है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन जो दिया है वाटर का, उसी की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे। कैसे, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है, इट डज मीन कि काई H2O इसकी वैल्यू हमें दी गई है और इसका फॉर्मूला अगर हम रखें तो यही होगा NH2O, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, और यहाँ पे NH2O, और यहाँ पे ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, यही हमें कैलकुलेट करना है H2SO4। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी तो हम मोलैलिटी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.85 है, 0.85, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.85 गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अब ये कितना होगा, अभी कुछ देर पहले किसी एक प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया है कि अगर 1000 ग्राम ले रहे हैं और मॉलिक्यूलर वेट जो वाटर का 18 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 55.55 था। इस वैल्यू को याद रख लीजिए, हम हमेशा काम देगा 55.5 ऑन डिवाइड ऑन, हाँ ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगेन 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है।
सो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट यू विल फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, इसको इधर इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे 55.55, ये न्यूमरेटर अपनी जगह पे है, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज एट इट्स प्लेस एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 0.85. After that subtractions 55.55, this much you will have to do the subtraction. So देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, हाउ मच यू विल गेट हियर, देख लेते हैं कैलकुलेट करके एक बार। 55.55 divided by 0.85, that is 65.35. Here I am getting 65.35 minus 55.55. So on subtraction, how much you will get? Minus 55.55, 9.802, this much value we are getting, ठीक है। इतनी हमें नंबर ऑफ मोल्स इतना आ रहा है H2SO4 का, ठीक है। तो हमें निकालना है मोलैलिटी, निकालना है, हम इसका मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलैलिटी, स्मॉल m से मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वो कितना है 9.082 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या केजी कह सकते हैं, लीटर भी कह सकते हैं, तो वहां पे 1 लीटर, मैं 1 ले ले रहा हूं पहले, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 9.802. सो दिस इज आवर आंसर फॉर द मोलैलिटी, ठीक है। इस ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा इसका मोलैलिटी सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। मोलैलिटी सल्फ्यूरिक एसिड का इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml of solution containing 5 gram of NaOH, 100 ml of solution, इसमें 5 gram of NaOH, उसको मिक्स किया जा रहा है 200 ml of M/5 मींस 0.2 मोलर सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन नया बना उसका, ठीक है। तो देखिए दो सॉल्यूशंस को इसमें मिक्स किया जा रहा है एंड वी आर ऑब्टेनिंग थर्ड सॉल्यूशन, इट मींस वी हैव टू यूटिलाइज दिस फार्मूला। इफ यू डू रिमेंबर, मैंने बताया यहाँ पे पिछले पार्ट में M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, इस क्वेश्चंस को हमने बताया है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमें यूज करना होगा, ठीक है। हमें M3 कैलकुलेट करना है, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू दी गई है ये M/5, M1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 ग्राम ऑफ NaOH को जब हम 100 ml में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए निकाल लेते हैं मोलैरिटी, इजी है। मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, गिवन वेट NaOH का कितना है इतना, और डिवाइडेड बाय 40 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 100 ml है तो ये 0.1 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 40, 1/8 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, अपॉन 1 यहाँ कर देते हैं, सो 1/8 into 1/0.1, सो हाउ मच विल गेट 1/0.8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 0.8, इट मींस 10 डिवाइडेड बाय 8, सिंपली यहां से देखना है 10 डिवाइडेड बाय 8, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो समथिंग आई रिमेंबर वैल्यू 1.2 मिलेगा, 1.2 मोलर, ठीक है। तो जो नया सॉल्यूशन हमारे पास आया मींस M1 की वैल्यू हमारे पास 1.2 आ गई, M2 पहले से दे रखा है, अब इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हाउ मच वी विल गेट, M3 इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा M3 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास 1.2 है, यहाँ पे 1.2 इंटू V1 यानी 100 ml, अब यहाँ पे ml में चेंज नहीं कर रहे हैं, 100 ml प्लस M/5 है यानी 1/5, सो 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2, सो वी आर ऑब्टेनिंग वैल्यू 0.2 इंटू 200 ml है, हाँ 200 ml है हमारे पास यहाँ पे, और जो टोटल V3 होगा, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम 300 हो जाएगा, 200 प्लस 100 दैट इज 300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट हाउ मच वैल्यू वी विल फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमारे पास मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है। सो आई होप प्रॉब्लम्स आप लोग को ये समझ में आ रहे हैं कैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ एक दो और प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगर कुछ और नए किस और नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 3 more प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन
फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड देन आफ्टर नॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी, व्हाट डू वी कॉल फॉर्मेलिटी? जब कोई काम हम बेमन से करते हैं, व्हेन वी डू एनी वर्क विदाउट एनी इंटेंट, दैट्स कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, बट क्वेश्चन को मन से करते हैं, अदरवाइज एग्जामिनर भी फॉर्मेलिटी कर देगा और अपने मन से ही नंबर देके चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं, खैर मजाक की बात होती है। हाउ मच NaCl will dissolve in H2O to make 1 liter of 0.1 फॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, सो कितना हमें NaCl डिसॉल्व करना होगा H2O में कि जिससे 1 लीटर का 0.1 फॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी की बात की जा रही है, डिस्क्राइब द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, अच्छा सुनने में भी कितना आ जाएगा, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। सो फॉर्मेलिटी F इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो फॉर्मेलिटी हमें दी रखी है वैल्यू 0.1। आफ्टर दैट फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना होगा हमारे पास, नहीं है हमारे पास, वही तो हमें निकालना है, तो उसको हमने x ग्राम ले लिया। और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, NaCl का, सोडियम का 23 और इसका 17.5, 23 17.5 कैलकुलेट कर लेते हैं, 23.0 और here we get 30 करते हैं 35.5, how much we get, I think 58.5, 538, 58.5, the molecular weight of NaCl is 58.5, so we will get here 58.5 और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, पहले से ही कहा गया 1 लीटर। सो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.1, तो x अपॉन 58.5 इज इक्वल्स टू 0.1। सो कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.85 ग्राम, मींस दिस मच ऑफ NaCl मस्ट बी डिसॉल्व। इतना HCl अगर आप इतना NaCl अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें 1 लीटर का 0.1 फॉर्मल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये बात लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.25 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन। ठीक है, 0.25 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, अलग नहीं है। बस हमें करना क्या है यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन को ऐसे देना चाहिए थे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.25 मोलर सॉल्यूशन। एक लाइन नहीं दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमें समझना होगा भाई कि कितना हमें CaCl2 चाहिए। नंबर ऑफ मोलैलिटी दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0.25 मोल्स होगा। ठीक है, कैसे होगा फिर से बता दें, अगर 1000 ग्राम में इतना है मोलैलिटी, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू दी गई है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है, और सॉल्यूट हमारा कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये कितना है हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, हमें निकालना है कि कितना इसका वेट होगा कितना। तो सिंपली क्या करेंगे, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ CaCl2 कितना हमें चाहिए, ये सॉल्यूशन ये 0.25 मोलर बनाने के लिए इक्वल्स टू 0.25 इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, कैल्शियम का 40 और इसका 40, इसका 71 हो जाएगा, मींस 111 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हाउ मच विल गेट, 0.25 इनटू 111, 0.25 इनटू 111, 27.75 ग्राम। The value we are obtaining here 27.75 gram. This much of CaCl2 is required to form 0.25 molar CaCl2 solution. इतना ग्राम हमें चाहिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉब्लम, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी। इजी क्वेश्चन है ये। नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड दिया है
हाँ ऑक्सिलरी किससे दिया, अभी इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था, इसका कितना था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, सॉरी यहाँ पे एसिड है, हाँ बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस OH माइनस आयन 2 होता है, तो यानी इसकी इक्विवेलेंट वेट 63 हो गया हमारे पास। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है 6.3, इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास 63, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml है, लीटर में करेंगे तो 0.5 हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे। हाउ मच यू विल गेट हियर, यहाँ हमें मिलेगा 0.1, यहाँ डिवाइड करने पे 0.5 मींस 1/5 डिवाइड करेंगे 0.2 नॉर्मल। सो सॉल्यूशन हमारा नॉर्मलिटी यहाँ पे कितना आया, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.2 नॉर्मल, ठीक है। ये इतनी इसकी नॉर्मलिटी है, ये काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो दिस मच इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, okay, so this is how we have solved 17 problems based upon the different topics like molality, normality, mole fraction, mass percent, ठीक है। इन सब चीजों में पार्ट्स पर मिलियन पे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स डू कंप्लेन सर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कराए। सो एट द माय इंट्रोडक्शन वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैवंट डिस्कस एनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट हियर और मे बी एक्सरसाइज आल्सो, ठीक है। तो चीजें मैं अलग से पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ओनली वन थिंग आई विल से कि जितने भी इसके बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ट्राई टू सॉल्व इट। फॉर्मूला याद कीजिए पहले, या याद क्या करना है, पहले क्वेश्चंस लगाते जाइए, फॉर्मूला अपने आप याद होता जाएगा। डोंट ट्राई टू मग अप द फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं, ओके। So I hope things are clear to you. Stay tuned with me on my YouTube channel e-learning with Ankit and keep progressing your subject chemistry. Thank you.